Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Minister of Punjab National Bank. With UCO Bank LBO vacancies, I am reading one comment that is too frequent, more especially from West Bengal candidates. Some of them are saying they are having headquarter in West Bengal, why they have not given vacancies for West Bengal people, why they have given vacancies for other states, and so on. Even some person suggested they should shift the headquarter. If they shift the headquarter, it will be more painful for the West Bengal candidates because lot of West Bengal employees are working in UCO Bank if they are having headquarters in Calcutta. So this is not a solution. I think we should try to understand the concept instead of giving uh, reaction to any notification. Why LBO notifications are coming? LBO notification concept is coming to take local people in the areas where there is shortage of staff for a particular bank. Say there is a state and they are not getting employees for that state, those are well conversant with the language. So they are adopting a route that is now local bank officer, where this officer will be there for fairly long period, maybe say 10 years. That is the concept of local bank officer. Whether this will succeed or not, time will tell. So if in UCO Bank they have adequate employees, those are Bengali speaking, and there is no shortage of staff of Bengali speaking people in West Bengal, how they will come out with vacancies for LBO in that? Rather, they will prefer to go for probation officer vacancies where they will have all India freedom of posting the employees. So I don't think this is the people are understanding the concept of LBO. LBO is a concept where a bank is trying to fulfill or fill the gaps wherever they are not getting the staff for a particular state. Those are well conversant with the local language. Just to help that, the banks have come out with the idea of local bank officer. So definitely these vacancies will be more in the states where a particular bank is having shortage, and this will be zero or less where they are having adequate number of employees. Those are able to deal with the customer in their local language. So we have to understand this is not a replacement per se of PO. PO concept will continue. PO means you are having a already a cadre. Local bank officer means you are having a state specific cadre. So banks may have multiple cadres, maybe some all India cadres, some maybe state level cadres. So this is the choice of the bank. We need not react to every situation in a negative manner. Okay. Sometime it may be helpful that I belong to a particular state and I am getting the vacancies. I am happy. Sometime I am desiring of vacancies in my state. I am not getting the vacancies. I feel hurt and I start reacting. This is obvious. But we have to understand that the total number of officers to be taken by the bank is a particular number. Out of that, they will decide whether to go for the PO route, whether to go for the LBO route. So LBO is only filling the gaps. This is not a permanent solution. Once we will understand, I think we can control our emotions. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज एलबीओ का नोटिफिकेशन आया है यूको बैंक का, तो उसमें तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं. क्योंकि होता क्या है, जब कोई भी नोटिफिकेशन आता है, हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं उसमें एलिजिबल हो जाऊं. और ऑब्वियस है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा सोचना, ऐसा समझना ऑब्वियस है. बट होता क्या है कि कई बार हम ओवर रिएक्ट करते हैं क्योंकि हमें कंसेप्ट ही नहीं पता होता. जो लोकल बैंक ऑफिसर का कंसेप्ट आया है वो ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर बैंक में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में एम्प्लॉइज की कमी है जो लोकल लैंग्वेज जानते हैं, तो वो इस रूट से रिक्रूटमेंट करके उस गैप को फिल कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि जो ऑल इंडिया कैडर है वो पीओ है, वो कंटिन्यू रहेगा, वो कोई अबॉलिश नहीं होना. पीओ कंसेप्ट विल कंटिन्यू.
बट लोकल बैंक ऑफिसर कंसेप्ट एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बैंकों को दिया गया कि इसको देखो, इससे अगर आपके गैप्स फिल होते हैं। कई बैंक ऐसे हैं जहां एक पर्टिकुलर स्टेट में उनके पास एम्प्लॉय है ही नहीं, या वहां एम्प्लॉय जाने को तैयार नहीं हो रहा, तो वो जोर जबरदस्ती से ना भेजें, और जो लोग विलिंग है उन एरियाज में काम करने के, जो लोकल लैंग्वेज चाहते हैं, उसको इस प्रोसेस से भरने की एक पहल की गई है। अब ये भी हो सकता है कि यूको बैंक अगर वेस्ट बंगाल का बैंक है तो उसके पास एडिक्वेट एम्प्लॉइज हों जो बंगाली स्पीकिंग है, और उनको कोई शॉर्टेज नहीं है, ठीक है, तो उनको नहीं चाहिएगा उस स्टेट के अंदर। इससे कोई लिंक नहीं है कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वहां पर ज्यादा वैकेंसी उस स्टेट के लिए हो जाएगी। वो तो पीओ से भरी ही जा रही है, क्योंकि हर बैंक ऑल इंडिया कैडर को प्रेफर करेगा स्टेट लेवल कैडर से। इसलिए पीओ की वैकेंसीज अपनी जगह आती रहेंगी। कुछ ऐसे बैंक हो सकते हैं जहां काफी शॉर्टेज है कुछ पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो अपना एलबीओ के रूट से उसको भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 साल तक वो एम्प्लॉई उस स्टेट के अंदर रहेगा। ठीक है, आपको ही कह रहा है जी अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेना चाहिए कोलकाता से यूको बैंक। अरे एक नोटिफिकेशन की वजह से यदि वो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेंगे तो जो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल के लोग कलकत्ता में काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? उनको भी तो डिस्प्लेस होना पड़ेगा। ऐसा वाइल्ड रिएक्शन मत दीजिए, क्योंकि कोई भी बैंक है उसकी अपना उसने सोच समझ के अपनी रिक्रूटमेंट करनी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वही तो लेगा। कभी वो हो सकता है नोटिफिकेशन आपको सूट कर जाए, आप खुश हो जाओ। अब आपको कई नोटिफिकेशन ऐसे आए थे जहां वेस्ट बंगाल वालों में वैकेंसीज मिल गई, बाकी स्टेट में नहीं थी, वो लोग परेशान हो रहे थे। तो ये तो चलेगा, क्योंकि जब आप किसी एक नोटिफिकेशन को इसलिए ला रहे हो कि उस पर्टिकुलर स्टेट की कमी को भरना है, तो उसमें तो मतलब कोई स्टेट एडवांटेज पे चला जाएगा, कोई स्टेट के कैंडिडेट डिसएडवांटेज पे चले जाएंगे। पर वहां जो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इस स्टेट के लोगों को लेना है या नहीं लेना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। हर स्टेट का व्यक्ति आ सकता है आईबीपीएस पीओ में, मगर एक पर्टिकुलर स्टेट में मेरे पास शॉर्टेज है उस लैंग्वेज को बोलने वाले अफसरों की, तो नेचुरली मैं उस स्टेट के लिए ही निकालूंगा ना वैकेंसीज। तो इसको थोड़ा सा हमें समझदारी से लेना है। देखो, मेरा काम है आपको राइट एडवाइजर राइट टाइम देना, क्योंकि जब आप अपसेट होते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, दूसरे का तो कुछ नहीं बिगड़ता है। जब आप अपसेट होंगे आपकी पढ़ाई में विघन आएगा, आप अपनों को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा शायद कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसा कुछ है नहीं है। जो मैनेजमेंट है वो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नोटिफिकेशन बना रही है, उसका ना तो वो आपको फेवर कर रही है ना वो आपको डिसफेवर करना चाह रही है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट होती है किसी की फेवर नहीं है। कोई भी बैंक लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकालता, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उसको एम्प्लॉइज की जरूरत है, उसको काम करने वाले लोग चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइप के लोग चाहिए, उस तरह का वो नोटिफिकेशन निकालेगी। कोई चैरिटी नहीं कर रहा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई वैकेंसीज निकाल के कि देश में बहुत बेरोजगारी है, चलो आओ इनको रोजगार देते हैं, ऐसी कोई सोच होती नहीं है। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस जहां पर पहली चीज है कि क्या मुझे एम्प्लॉय चाहिए, दूसरा है क्या मैं इन एम्प्लॉइज को अफोर्ड कर सकता हूँ, और तीसरा है कि किस तरह का एम्प्लॉय मुझे चाहिए, उस तरह की रिक्रूटमेंट की जाती है। तो इसलिए कई बैंक आप देखेंगे कि टेक्निकल पोस्ट से ज़्यादा निकाल रहे हैं, कई बैंक हैं जो मेन स्ट्रीम ऑफिसर्स ज़्यादा चाहिए उनको, कोई बैंक है कि जो वो इंटरनल प्रमोशन से ज़्यादा करना चाह रहा है। तो ये हर बैंक की सोच के ऊपर और एचआर पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा। इससे बहुत ज़्यादा खुश या नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल।